Good evening, everyone, and a very warm welcome to our webinar. My name is Fatma Shokat, and I am a BS Public Health student at the University Institute of Public Health, the University of Lahore. Today, I have a pleasure of being your moderator for today's session, which is on the color blindness and ignored disability, which is brought to you by Public Health Awareness and the Training Center. Our speaker today is Hania Farouk, a public health undergraduate student at the University Institute of Public Health, the University of Lahore, with a strong academic background and extensive experience in research, advocacy, and community engagement. She has worked on projects with British Council and she is a KL Yes alumni who actively volunteers with the Pakistan USA Alumni Network, contributing to community based awareness initiatives. With experience in leading health focused webinars and youth led projects, Hania brings an inclusive, rights based public health perspective to disability awareness, emphasizing equity, access, and social inclusion. Hania has represented Pakistan at national and international forums and is deeply committed to advancing inclusive public health dialogue. So now it's over to you, Hania. Thank you so much. Assalamualaikum everyone. Thank you so much, Fatma, for such a wonderful introduction. First of all, I would like to thank Public Health Awareness and Training Center for giving me this opportunity to talk about color blindness. It is a very personal topic for me because I'm a colorblind person as well, and I didn't realize how much it impacted my life. Okay, these are going to be the table of contents for today's webinar. I'll introduce you guys to what color blindness is, and I will give a brief introduction about the anatomy of the eye so you can understand how color blindness actually occurs. And then there are multiple types of color blindness and then I will talk about what the impact of CVD is and what are the diagnostic tools we have and what recommendations I bring or what recommendation other people impacted by color blindness bring to the table and what they say we should do. So let's start with the definition. Color blindness or color vision deficiency is basically that a person has trouble distinguishing between colors. There are two forms of it basically. One form is less severe and more common where people have problem distinguishing between similar hues or similar shades. On the other hand, a rare population impacted by complete color blindness sees the world in black, grays, and whites. And that is why I have actually made my presentation in black, grays, and whites because I wanted to be inclusive for those people if anyone has complete color blindness in the participants. Okay, let's start with the anatomy of the eye. So, retina is part of the eye which is responsible for forming the image. It has two crucial parts, the rods and the cones. They are called the rods and cones because of their specific shapes. So the rods, they handle low light and they are responsible for the vision in darkness. जो cones होती हैं, they are responsible for detecting colors. So if a person has color vision deficiency or if they are color blind, तो मसला हमेशा cones के अंदर होगा. अब कोन्स जो हैं इनकी थ्री टाइप्स होती हैं, द रेड कोन्स, द ग्रीन कोन्स एंड द ब्लू कोन्स. इनकी जो डिफरेंशिएशन है वो इस बेसिस पे होती है कि लाइट जो है, जो लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं. तो सर्टेन कोन्स जो हैं वो सर्टेन वेवलेंथ्स को रिस्पॉन्ड करती हैं, उनको डिटेक्ट करती हैं, उनकी तरफ सेंसिटिव होती हैं. तो इसी की बेसिस पे हम लोग रेड कोन्स या एल कोन्स, ग्रीन कोन्स, एम कोन्स जो मीडियम वेवलेंथ्स को डिटेक्ट करती हैं, फिर देन वी हैव द ब्लू कोन्स जो शॉर्ट वेवलेंथ्स को डिटेक्ट करती हैं. तो ये इसमें डिफरेंशिएशन का क्राइटेरिया होता है. ये एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कॉन्स हैं, रॉड्स हैं. दिस इज द एनाटॉमी ऑफ अ रेटिना. अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस की क्या टाइप्स होती है. तो सबसे जो कॉमन है वो डायक्रोमेसी है या डायक्रोमेटिज्म है, जिसमें ये होता है कि आपके पास जो थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स हैं उनमें से सिर्फ टू फंक्शनल होती हैं और जो थर्ड टाइप होती है वो कंप्लीटली नॉन फंक्शनल होती है. अब अगर आपको प्रोटोनोपिया है किसी पर्सन को, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी रेड लाइट डिटेक्टिंग कोन्स हैं दे आर इम्पेक्टेड, उसको रेड कलर ब्लाइंडनेस होगी. ऑन दी अदर हैंड अगर किसी को ड्यूट्रानोपिया है तो उसको ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगी कि वो ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश करने में उसको मसला होगा. ऑन दी अदर अगर उसको टाइटेनोपिया है तो वो ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होगा और ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लूज एंड येलोज और उसके जो ब्लू कोन्स हैं दे आर इम्पेक्टेड. अब डायक्रोमेसी में बेसिकली ये होता है कि जो आपकी एक कोन मिसिंग है इट इज कंप्लीटली नॉन फंक्शनल, मतलब उस वो बिल्कुल ही सेंसिटिव नहीं है टुवर्ड्स इट्स इंटेंडेड कलर.
ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास अनोमलस डाइक्रोमेसी है, इसमें यह होता है कि आपके पास तीनों कोन्स अवेलेबल होती हैं, बट दे हैव अ रिड्यूस सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द कलर्स। तो अगर आपके पास प्रोटन नॉर्मली है तो उसमें यह होगा कि आपके पास जो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स रेड कलर है वो रिड्यूस्ड होगी। ड्यूटा नॉर्मली में इसी तरह सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द ग्रीन कलर रिड्यूस्ड होगी। ऑन दी अदर हैंड ट्राइटोनॉर्मली जो है उसमें आपके पास ब्लू कलर के लिए जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस्ड होगी इन योर कोन्स, और आपको येलो और ब्लू कलर्स में डिस्टिंग्विश करने में मसला होगा। फिर आपके पास आ जाता है एक्रोमाटोप्सिया या रॉड मोनोक्रोमेसी, और दूसरी टाइप होती है कोन मोनोक्रोमेसी। अब इसमें इसके नेम में ही यही बात है कि अगर आपके पास रॉड मोनोक्रोमेसी है तो इसका मतलब है कि यू ओनली हैव रॉड्स एंड योर कोन्स आर टोटली नॉट फंक्शनल। तो फिर इसमें ये होता है आपको कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस होती है, यानी आपको फिर जो दुनिया है वो इट इज इन ब्लैक वाइट्स एंड ग्रेस, जिस तरह से मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। बेसिकली फॉर अ पर्सन इम्पैक्टेड बाय दिस, उनके लिए सारा हर चीज, हर कलर, हर आइटम जो भी आप डेली लाइफ में अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हर चॉइस फॉर अ ड्रेस या शूज या ट्रैफिक लाइट्स, जिन जिन चीजों में आप कलर देखते हैं या कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली, वो सब कुछ ब्लैक वाइट्स एंड ग्रेस होते हैं। कोन मोनोक्रोमेसी में ये होता है कि उसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ कोन जो है वो फंक्शनल होती है, बाकी दोनों जो है वो नॉन फंक्शनल होती हैं, और ये दोनों जो टाइप्स हैं दे आर वेरी रेयर। ये कुछ ये सर्कल्स हैं टू शो कि किस तरह से जो सेंटर सर्कल है द स्मॉलर वन, इट शोज नॉर्मल विजन, जो कि एक नॉर्मल इट शोज कि अगर किसी बंदे को सीवीडी है या इफ दे हैव कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस तो उनको किस तरह से कलर्स नजर आते हैं। Okay, this is very interesting. So when I was researching for this webinar and I was thinking कि अच्छा मैंने अपने references देने हैं and I want to share data about it and want to share information about it, तो I had trouble finding good sources of data for it. जब मैंने पबमेड की वेबसाइट ओपन की तो वहां पे एक वो टाइम स्पैन वो मांगते हैं कितनी देर की आपने रिसर्च देखनी है, तो आई पुट इन 10 years कि 2016 से 2026 तक की मुझे सारे रिसर्च आर्टिकल्स आप दिखाएं जो कलर ब्लाइंडनेस, सिर्फ ओनली द कीवर्ड वाज कलर ब्लाइंडनेस। उसके अंदर इंटरेस्टिंगली आई हैड लेस देन 1000 रिसर्चेज अवेलेबल, यानी इसके ऊपर इतनी कम रिसर्च हुई हुई है कि इन 10 years देयर आर ओनली लेस देन 1000 आर्टिकल्स ऑन कलर ब्लाइंडनेस। और मोस्टली जो थे वो जीन थेरेपी के ऊपर थे कि आपने अगर अगर आपको है कि आपके जो बेबी बॉर्न होने वाला है, इफ ही इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस, तो आप देयर आर सम पॉसिबल टेस्ट हैं या कुछ पॉसिबल अभी रिसर्चेस हो रही हैं दैट माइट बी बेनिफिशियल इन द फ्यूचर, और उनसे शायद हम कलर ब्लाइंडनेस को ठीक कर सकें। तो जब मैं प्रेवलेंस का डाटा ढूंढ रही थी तो दिस इज अ बुक दैट वाज पब्लिश इन 2005, इसका नाम है द परसेप्शन ऑफ कलर एंड इट वाज अपडेटेड इन 2007। और ये अपडेटेड जो क्या कहते हैं डाटा है उसकी बेसिस पे ये था कि आपके पास जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसकी ये प्रेवलेंस होती है। जो हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन आती है वो ग्रीन कलर, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आती है, और उसमें ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास सबसे ज्यादा होती है ड्यूटा नॉर्मली, यानी कि ग्रीन कलर कोन्स अवेलेबल हैं लेकिन उनकी सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है, वो सबसे ज्यादा कॉमन है। और जो हमारे पास मोनोक्रोमेसी है जिसके अंदर बिल्कुल आपको कोई कलर्स नजर नहीं आते, वो सबसे ज्यादा रेयर होती है। अब हम कॉजेस की बात कर लेते हैं कि रेड कलर ब्लाइंडनेस होती क्यों है। तो रेड कलर ब्लाइंडनेस जो है वो यूजुअली इन मोस्ट केसेस कंजेनिटल होती है। देयर आर सम केसेस, अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस जो कि किसी डिजीज की वजह से या कुछ कोई आप इस तरह की मेडिकेशन का रिएक्शन आ जाए जिससे आपकी विजन और एक्यूटी है वो इम्पैक्ट हो जाए, तो तब ये हो सकता है कि उसके एज एन साइड इफेक्ट आपका कलर विजन जो है इम्पैक्ट हो जाए। लेकिन यूजली जो कलर ब्लाइंडनेस होती है या सीवीडी होता है, इट इज बाय बर्थ। अच्छा, अब इसके ये इट इज अ जेनेटिक डिजीज, तो इसके पैटर्न होंगे। तो इट कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करता है। इसका क्या मतलब होता है? अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स इन फीमेल ह्यूमन फीमेल्स एंड एक्स वाई इन ह्यूमन मेल्स। तो जब एक्स रिसेसिव इनहेरिटेंस होती है उसमें ये होता है कि आपके पास जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स या विच एवर एक्स क्रोमोसोम इज अवेलेबल, विच वन और बोथ ऑफ देम, वो दोनों जब भी रिसेसिव एलील वाले होंगे तो देन यू विल हैव दैट डिजीज। क्योंकि फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एंड यूजुअली दे हैव वन रिसेसिव एंड वन डोमिनेंट, वो यूजुअली या तो कैरियर्स हो जाती हैं या तो दे डोंट
have any incidents of. Anyways, I was going to talk about the inheritance patterns for color blindness. So if the mother is normal, she does not have any sort of color blindness, and father is normal as well, all their offsprings will be fine. On the other hand, if mother is carrier and father is not colorblind, then there's 50-50% chance that the male offspring might be colorblind and might not be colorblind. And the female offsprings have a chance of becoming a carrier, or they might not be colorblind at all because the mother is just a carrier and she is not colorblind. If a mother is a carrier and father is colorblind, which is in my case, then the female have 50% chance of being a carrier or 50% chance of being colorblind. On the other hand, the male offspring might not be colorblind and they might be colorblind because they can get either chromosome from their mother. Let's talk about diagnostic tools for color blindness. The most common one is the Ishihara pseudo-isochromatic plates test. What does pseudo-isochromatic plates mean? So pseudo means false, something pretentious, and iso means that is same, and chromatic means color, something related to color. So pseudo-isochromatic plates basically means that it's a test in which you get this perception, if you're colorblind, that the plates are similar and you cannot see the numbers inside of it. If a person is normal and they have proper color vision acuity, they can see all the numbers and they can pass it with flying colors. On the other hand, it's a very common basic test and it's commonly available online. On the other hand, a clinical level test is the Farnsworth-Munsell 100 hue test. Okay, so now the name is a bit misleading because it is called 100 hue test, but in the arrangements, you basically have to arrange 85 colored lids. They have multiple colors, and you have to arrange them by the order of the hue. And there's a rating scale from 0 to 16. So the lower the number you score on it, the higher color vision acuity you have. On the other hand, if you score higher on it, so that means you have severe color blindness or color vision deficiency. And when do we suggest that you should get tested? If there's a history of color blindness in your family, you should get tested in early childhood. It should also be a test for pre-employment for color sensitive jobs. There are multiple jobs where it is very necessary that you can differentiate between colors. So उनसे पहले जरूरी है कि जो आप जिनको एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं उनका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होना चाहिए. और अगर आपको अपने विजन में कोई चेंजेस नजर आ रहे हैं और या इफ देयर सर्टेन कलर्स यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एनीमोर, फिर आपको जरूर एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड आउट. ओके, आई टुक एन इशिहारा टेस्ट. ये एक कॉमन अवेलेबल था ऑन द नेट. आई टुक इट. आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू कि मेरे परसेप्शन किस तरह का था. एंड इफ समवन हैज अ नॉर्मल कलर विजन तो वो they might be able to solve it. I was not able to solve it. I'll just show you the video. मैंने ये रिकॉर्ड की थी while solving it. तो yeah. I cannot see anything. And this was my result. It's not an official result क्योंकि ये random website थी on the net. लेकिन बाकी भी शिहारा टेस्ट इसी तरह के होते हैं. You can actually get books of them कि आपने अगर उनको हार्ड फॉर्म में अटेम्प्ट करना हो तो. अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंड ग्लासेस होती हैं लेकिन दे आर नॉट अ क्योर. उनसे बेसिकली आपकी जो कलर परसेप्शन है वो इंक्रीज हो जाती है. आपको शायद कलर जो है वो शार्पर नजर आना शुरू हो जाए, बट इट्स नॉट अ 100% क्योर फॉर कि कलर ब्लाइंडनेस आपकी ठीक हो गई है, नाउ यू आर फाइन. जैसे मतलब अगर आप यू हैव ब्लाइंडनेस या इफ यू हैव आपका विजन रिड्यूस या नॉर्मल विजन, तो यू कैन गेट लेसिक फॉर इट या देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर इट. लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. और इसमें मैं थोड़ी अपनी पर्सनल हिस्ट्री भी शेयर करना चाहूंगी कि व्हाट हैज़ बीन माय परसेप्शन अबाउट कलर ब्लाइंडनेस और मतलब मेरा क्या परसेप्शन रहा है.
मुझे पता चला था कि आई एम कलर ब्लाइंड इन 2021 when I had to go for this one event and I mixed up light green color and yellow color. Basically the theme was light green. It was an Independence Day event और वहां पे मैंने ग्रीन कलर पहन के जाना था, तो I had this dress and it was in light green color. और मुझे लगा कि इट इज इन लाइट ग्रीन कलर एंड इट वाज अ लाइट येलोइश कलर, तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाई। एंड देन इट क्लिक्ड इन माय हेड कि अच्छा, क्योंकि मेरी फैमिली की हिस्ट्री है, माय सिस्टर्स आर कलर ब्लाइंड, ऑल ऑफ माय सिस्टर्स आर कलर ब्लाइंड, माय फादर इज कलर ब्लाइंड। तो पॉसिबिलिटी यही है कि मतलब इट्स माय मदर इज अ कैरियर, तो आई एम कलर ब्लाइंड एज वेल। तो वहां से आई फिगर्ड आउट कि अच्छा मुझे कलर ब्लाइंडनेस, एंड देन आई डिड द इशिहारा टेस्ट ऑनलाइन। आई वाज लाइक अच्छा आई डू हैव इट। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है, हम एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। I have taken a few webinars online. I remember one clearly कि it was an international level webinar and it was a very good webinar. उसमें उन्होंने हमें एक small task दिया। अब उसमें हमने कुछ चीज़ों को कैटेगराइज करना था एंड उनमें हमने कलर्स रखने थे, रेड, ग्रीन, येलो और मल्टीपल अदर कलर्स है। लेकिन ये वो कलर्स है जिनमें मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाई थी। और उसमें इतने पार्टिसिपेंट्स थे कि उस टाइम पे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू एडवोकेट फॉर माई सेल्फ के मुझे ये नजर नहीं आ रहा, आई कैन नॉट कैटेगराइज द आइटम्स प्रॉपरली क्योंकि मुझे कलर्स नजर नहीं आ रहे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। तो तब मैंने फील किया कि मुझे एक बैरियर महसूस हुआ तब। फिर उसके बाद कई दफा इस तरह होता है कि हम, क्योंकि आई एम अ पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स। तो ग्राफ्स में वहां पे जब वो ग्राफ्स वगैरह होते हैं, तो देयर आर वेरी सटल डिफरेंसेस इन डिफरेंट शेड्स जब वो यूज कर रहे होते हैं इन द ग्राफ्स। तो कई दफा आई हैव ट्रबल डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन देम क्योंकि मुझसे नहीं देखे जाते वो कलर्स, मेरी माय आईज कैन नॉट सी देम, माय आईज कैन नॉट परसीव द कलर। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग एजुकेशन। फिर लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, उसमें मुझे काफी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है अब, क्योंकि मैंने रियलाइज किया थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू रिसर्चिंग कि देयर आर सर्टेन थिंग्स इन माय लाइफ जो कि हमेशा इम्पैक्ट होती आई हैं एंड मुझे हमेशा लगता था कि शायद मुझे वो बस करना नहीं आता। अब वेरी कॉमन एग्जांपल जो मैंने अपने दोस्तों वगैरह के साथ अपने सर्कल में शेयर की हुई है इज अबाउट मेकअप। कि व्हेन आई एम अप्लाइंग मेकअप, तो मैं हमेशा अपना जो ब्लश है आई वुड ऑलवेज पुट इट ऑन टू मच। मतलब मेरे दोस्तों को मुझे बताना पड़ता था कि यार इट्स देयर, इट्स टू मच, कि आप उसको कम करें। आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि यार मुझे तो इतना ज्यादा नहीं लग रहा, कि मतलब ये क्यों कह रही है कि इतना ज्यादा है। तो देन आई रियलाइज, मैंने एक कंटेंट क्रिएटर को बेसिकली देखा था एंड शी टॉक्ड अबाउट इट कि शी इज कलर ब्लाइंड एंड शी यूजेस कलर ब्लाइंड ग्लासेस व्हाइल डूइंग हर मेकअप, क्योंकि उसको वरना वो चीजें नजर नहीं आती। फिर इसी तरह से इफ आई हैव टू चूज सर्टेन आइटम्स फॉर माई सेल्फ और माई स्किन, तो आई नीड टू टेक समन विद मी, क्योंकि मुझे अपनी जो अंडरटोन्स हैं और अपनी स्किन टोन है वो उस तरह से नजर नहीं आती जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान को आती है। फिर लिमिटेशंस हैं प्रोफेशन में। ऑब्वियसली आप एविएशन की बहुत एक कॉमन एग्जांपल है कि अगर आपने एविएशन में जाना है या आपने आर्ट रिलेटेड किसी डिग्री में जाना है, तो यू विल ऑलवेज हैव बैरियर्स क्योंकि आपको कलर्स नजर नहीं आ रहे। और एविएशन में तो इट्स वेरी कॉमन कि वहां पे वो सिग्नलिंग के लिए यूज होते हैं कलर्स। तो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कलर एक्विटी, तो आप फिर उस तरह के प्रोफेशन में नहीं जा सकते एंड देयर इज लिमिटेशन। फिर इक्विपमेंट यूजेज है। आई हैड अ डिवाइस, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट दे डू एड अप इन while impacting my quality of life. I had a few things, जैसे डिवाइसेस होती हैं कुछ सर्टेन, उनका वो जो ग्रीन से रेड का चेंज आता है फॉर बैटरी यूजेज या कुछ भी इस तरह का शो कराने का, वो बहुत सटल होता है कई दफा। मुझे नजर नहीं आता कि अच्छा अब इसकी बैटरी लो हो गई है या इफ देयर सिग्नल अवेलेबल और नॉट। तो मुझे इस तरह के इक्विपमेंट यूज करते हुए कई दफा इश्यूज आए हैं। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग फॉर मी कि आई गेट वेरी कंफ्यूज नाउ कि मैंने कलर्स चूज करने हैं। इफ आई एम चूजिंग एन आउटफिट, तो मैंने किस तरह चूज करनी है, तो आई हैव टू टेक्स्ट माई फ्रेंड्स कि अच्छा ये कलर इसके साथ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। फिर अगर मुझे कलर्स नजर ही नहीं आ रहे सही तरह से, इफ आई कैन नॉट डिफरेंशिएट कि वो ब्राउन्स हैं या वो रेड्स हैं, वो ब्लूज हैं या पर्पल्स हैं, वो ग्रीन है या येलो है, तो आई एम गोइंग टू मैस अप। तो वो चीज इतनी कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में इनग्रेन रहती है कि इट इम्पैक्ट्स माई कॉन्फिडेंस व्हेन मेकिंग चॉइसेस कि अच्छा अब मैंने कुछ चूज करना है, अनलेस और अनटिल वो बहुत क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि ठीक है इट्स अ ब्लैक कलर या वाइट कलर है या बहुत ब्राइट येलो है या ब्राइट ब्लू है, तो देन आई कैन मेक डिसीजंस। लेकिन अगर कोई भी उसमें सटल कलर्स हैं या कुछ भी इस तरह का है, तो आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि अच्छा मुझे प्लीज हेल्प करें टू मिक्स एंड मैच माई आउटफिट। फिर उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत है इसके बारे में। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, उनका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए ये होता है, आपको दुनिया काली और सफेद नजर आती है?
तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको सारा कुछ ही नजर नहीं आता है, या मतलब यू आर टोटली ब्लाइंड टू ऑल द कलर्स। डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की कलर ब्लाइंडनेस है, और लोगों को ये चीज नहीं पता होती। और फिर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपको काला और सफेद नजर आता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, अच्छा ये चीज देख के बताओ, एक सर्टन आइटम कोई भी आसपास होगी, एंड ये चीज देख के बताओ ये नजर आ रहा है या नहीं, ये नजर आ रहा है या नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू पीपल के कुछ कलर्स में मुझे डिफिकल्टी हो रही है। और वो कलर्स हर दफा वहाँ अवेलेबल नहीं होते कि मैं आपको डिफरेंस शो करा सकूं कि अच्छा ये लाइट ग्रीन है और ये येलो है, तो इन दोनों में मुझे कलर डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा। या ये बहुत कोई वो क्रिम्जन किस्म का रेड है और ये कोई ब्राउनिश शेड है मिलता जुलता उस मैरून से, तो मुझे उन दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा कि ये मैरून है ये ब्राउन है। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। जरूरी नहीं कि मुझे बिल्कुल ही कलर्स नजर ना आए। तो ये डिपेंडिंग ऑन द टाइप और डिपेंडिंग ऑन द पर्सन ये वेरी करता है। और मतलब दीज क्वेश्चन मतलब वो ऐसे लगता है कि आप बस समझ रहे हैं कि वो इट्स जस्ट अ वन स्पेक्ट्रम है, मतलब एक ही वो वेवलेंथ है सबकी। ऐसे नहीं होता, इट्स अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज के। ये इसमें किस तरह से मल्टीपल लोगों को मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये इम्पैक्ट है इसका। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय प्रेजेंटेशन एंड दिस वेबिनार, कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को समझें कि इस डिसेबिलिटी का कितना इम्पैक्ट है ऑन माय डेली लाइफ। कि मैं चॉइसेस करते हुए मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मेरी एजुकेशन में हिंड्रेंस क्रिएट होती है, मेरे प्रोफेशन की चॉइसेस जो हैं वो लिमिटेड हो गई हैं, इस पर रिसर्च नहीं हो रही है, इसके लिए कोई क्योर नहीं अवेलेबल। और मतलब आई वाज मतलब मुझे इतना टाइम लगा है टू फिगर आउट कि आई हैड कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसके लिए कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। ये हमारी नेशनल पॉलिसीज के अंदर इसका इसकी बात नहीं की जाती कि हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स होते हैं एजुकेशन में, उसमें कोई टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए। कुछ भी इस तरह का अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सीबीडी। फिर कॉल टू एक्शन यही है कि जो स्कूल प्रोग्राम्स हैं उनमें होना चाहिए इशिहारा टेस्ट की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। स्पेशली अगर टीचर्स ये देखते हैं कि कोई बच्चा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में स्ट्रगल कर रहा है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा हो, कि उसके विजन इम्पैक्टेड लग रहा हो, या वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं प्रॉपरली कर पा रहा, तो देन इट इज़ अ रीज़न फॉर कंसर्न। फिर आप उसके पेरेंट्स से बात करें एंड यू गेट देम टेस्टेड, कि अच्छा फिगर आउट करते हैं कि क्या इशू है। उसके अलावा जो हमारे पास डेली लाइफ की चीजें हैं उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन होने चाहिए। कलर की सिर्फ ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, आप शेप्स यूज कर लें। आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन शेप्स। तो शेप्स होनी चाहिए कि अच्छा यस इज फॉर दिस कैटेगरीज अगर हम कर रहे हैं, तो सर्कल इज फॉर दिस, ट्राइंगल इज फॉर दिस, रेक्टेंगल इज फॉर दिस। आप इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे आज मैंने प्रेजेंटेशन आई मेड इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। फिर उसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं व्हेन दे आर एम्प्लॉइंग पीपल, तो दे कैन ऑल्सो हेल्प देयर एम्प्लॉयर्स। अगर वहां पे कोई कलर ब्लाइंड इंसान आता है, इफ दे आर एम्प्लॉइंग समवन, कि आप जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर जहाँ पे कलर्स हैं अगर इफ दे हैव सर्टेन कलर ब्लाइंडनेस, तो उस तरह की जो उन कलर्स के लिए आप शेप्स यूज कर लें, उनके लिए बटन्स यूज कर लें, लेबल्स यूज कर लें। और पब्लिक अवेयरनेस इसके बारे में जरूर नहीं चाहिए, इसके ऊपर लोग बात नहीं करते। हालांकि इट हैज एन इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल पे, ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी लेवल, लेकिन स्टिल इट हैज एन इम्पैक्ट, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। तो हम जब डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो देन वी शुड इंक्लूड ऑल ऑफ देम, एंड इट इज एन इग्नोर डिसेबिलिटी, लोगों को नहीं पता होता। एंड मतलब क्वेश्चंस भी जब आते हैं इसी तरह के आते हैं, आई एम हैप्पी टू आंसर, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर अबाउट इट। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा फील होता है कि अच्छा हम थोड़े अनसीन हैं, अनहर्ड हैं, कि हमारा एक इशू है एंड इट्स जस्ट कि मतलब लोगों को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो दीज आर माई सजेशंस, दिस इज माई स्टोरी कलर ब्लाइंडनेस के साथ, और क्या मेरी जर्नी रही है अब तक। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी जो दोस्त हैं या मेरा सर्कल है, मेरा नेटवर्क है, दे आर वेरी सपोर्टिव अबाउट इट एंड दे आर वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट इट। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आज आप लोगों ने, कि आई कुड टॉक अबाउट इट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इट। एंड आई हैड दिस एग्जांपल एक्चुअली, आई प्ले पबजी। तो उसके अंदर दिस इज अ वेरी इंक्लूसिव थिंग टू डू। उसके अंदर उन्होंने ये कलर ब्लाइंड मोड रखा हुआ है। तो आई कैन बेसिकली, मैंने ड्यूटोनोपिया चूज किया हुआ है क्योंकि आई हैव ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो मुझे इससे पहले नजर नहीं आती थी चीजें, तो आई हैड टू अप्लाई दिस फिल्टर एंड इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इट्स वेरी वेल बिल्ट। तो ये मैंने एग्जांपल ऐड की कि इट्स अ वेरी इंक्लूसिव गेम। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि उन्होंने ये चीज सोची, और ये उन्होंने एक फीचर ऐड किया है उसके अंदर। तो दिस इज फॉर पीपल लाइक मी, और उन्होंने तीनों कलर ब्लाइंडनेसेस को टैकल किया हुआ है। If anyone has any questions, I would please ask. I would answer them.
Okay, so thank you so much, Hania, for sharing your personal journey with us. We truly appreciate your openness and for shedding light on a perspective many of us may not have considered before. So now we will move to our QA session. So guys, if you have any question, please feel free to ask them. You can either unmute your mic to ask Hania